A massive election campaign has come to an end, and we are going to know who is going to win this Lok Sabha election on June 4th. But the clear winners are these helicopter operators who have earned 40 to 50% extra this time if we compare it from 2019 figures. Most of the political parties, including BJP, Congress, and the regional parties, have demanded helicopters and choppers for their ministers, MPs, and for their star campaigners. This time, report says that there were 45 helicopters across the nation which were used in this massive political campaign. BJP alone has used 15 to 20 helicopters across the nation. Congress has also used multiple helicopters for their campaign and for their star campaigners. Even the regional parties like Samajwadi Party and TMC, they have also massively used helicopters. But the proper utilization of these helicopters and charters were used by BJP. The companies, the helicopter operators have charged in advance 90 days money from these helicopter, from all the political parties to whom they have provided these charters and helicopters. The BJP people and the MPs and the cabinet ministers have used these charters because they have to come back to Delhi in the evening, and they were campaigning across the states, across the nation. But the TMC have failed to use it properly, as the report says that they have only utilized few of the flights in the state in West Bengal. So there were reports that around 350 to 400 crore rupees was spent this time. If we compare it to 2019 Lok Sabha election, Election Commission is going to know the exact figure after 4th June that which political parties has used these helicopters and charters and how much money has been spent on these campaign. But for now, the report says, the expert says that there's a surge in the demand and there was less supply because of the massive campaign which has taken place. They were unscheduled. The ratio says that there are unscheduled operations in which this category is out there. Around 170 helicopters are there in India, and 45 to 50 helicopters were used in this massive campaign. So it's a big thing, and the operators of helicopters, especially the big companies in Delhi and in Mumbai, have provided helicopters and charters, small charters of 15 seats to 20 seats to all the political parties, and they have massively used this time all these helicopters and charters, single engine, double engine, and the small charters, and have provided, the political parties have provided to their star campaigners to reach out to the public. There are two factors why the politicians have a craze. They have a craze in their heart to use these helicopters. One, in the remote area, it is easy to reach from the helicopters, and second, it's a crowd puller. If you take the helicopter, if the politician takes the helicopter to a remote area, it's a crowd pulling thing. People come to see, to witness what kind of a helicopter, what kind of a helicopter our leaders are using, how it operates, and there's a curiosity. And due to that, there's a benefit to the political parties in their campaign. People come and see, they witness the campaign as well as the helicopter. So this time we have to see who is going to win the Lok Sabha election, but certainly the clear winners are these operations, these operators who have provided massively helicopters and the small charters to the political parties. सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत मैसिव कैंपेन हुआ है, और उस मैसिव कैंपेन में जो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स हैं या जो चार्टर ऑपरेटर्स हैं, उनको बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस से लेके जितनी रीजनल पार्टीज हैं, उन तमाम लोगों ने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पे किया है। हम आपसे समझना चाहते हैं कि इस बार कितनी ज्यादा, अगर हम कंपेयर करें 2014 या 19 से, तो जो डिमांड है हेलीकॉप्टर्स की वो कितनी ज्यादा रही? तो अगर मैं 2014 या 2019 से देखूं, तो यस, डिमांड 2024 में कम से कम 40% एज कंपेयर टू लास्ट 2019 इलेक्शंस। बट दिस टाइम जो हुआ है वो काफी अलग हुआ है। इस बार फ्लाइंग बहुत ज्यादा हुई है। तो फॉर एन ऑपरेटर, जैसे आप बोले कि कमाई बहुत ज़्यादा हुई है, तो वैसा नहीं है, बिकॉज़ हम अगर बहुत ज़्यादा फ्लाई करें, तो विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। अगर हम स्टैंड बाय पे रहें और हमें पूरे पैसे मिले, फ्लाइंग कम हो, तो ज़्यादा बेटर रहता है। बट इस बार हमने बहुत ज़्यादा फ्लाइंग की हुई है, कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स सुझा रही हैं कि इस बार जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा थी, नॉन शेड्यूल्ड जो ऑपरेशंस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आई,
और खास तौर पे एडवांस बुकिंग की गई पॉलिटिकल पार्टीज ने 6-6 महीने पहले बुक किया, 9-9 महीने पहले बुक किया। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 90 दिनों का कंपनीज कहती कि इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसके मुताबिक कुछ अगर आप बता पाए। नहीं, ऐसा तो नहीं था। देखिए, बुकिंग तो 3 महीने पहले से स्टार्ट हो ही जाती है, क्योंकि 2024 इलेक्शन, 2019 elections being the general elections, these are one of the biggest elections that happens in the country because the entire country goes for elections. तो वो हिसाब से 3 महीने पहले से बुकिंग स्टार्ट ज़रूर हो जाती है। बट ये नहीं है कि आपको या तो पूरे 90 दिन लेने हैं या पूरे 75 डेज़ लेने हैं। किसी ने 30 डेज़ भी लिए हैं, किसी ने 45 डेज़ भी लिए हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से स्टेट में किस हिसाब से इलेक्शन चले। जैसे फ़ेज़ के हिसाब से अगर आप देखिए तो अलग-अलग स्टेट में जो कि किसी के 3rd फ़ेज़ थे, किसी के 5th फ़ेज़ थे, किसी के 7th फ़ेज़ तक चले हैं। तो वो हिसाब से फ़ेज़ के हिसाब से लोगों ने हेलीकॉप्टर बुकिंग की हुई है। बट हाँ, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, फ्लाइंग लास्ट टाइम और उसके पहले 2014, 2019 में फ्लाइंग कम होती थी, स्टैंड बाय ज़्यादा रहता था। इस बार फ्लाइंग बहुत ज़्यादा हुई है। दैट इज़ फॉर श्योर, येस। एक चीज हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपर्ट से बात करी तो उन्होंने कहा कि चार्टर्स और हेलीकॉप्टर्स की यूसेज इसलिए भी ज्यादा बढ़े क्योंकि एक तो जो गांव में जो लोग हैं उनमें बहुत क्रेज है हेलीकॉप्टर्स को देखने का, तो वो कहीं ना कहीं क्राउड पुलर्स का काम करते हैं। और हेलीपैड जो बनाया जाता है वो जहाँ कैंपेन होता है, जहाँ मंच होता है, उसके आसपास ही बनाया जाता है। तो उससे दोनों फायदे होते हैं कि पब्लिक भी आ जाती है नेताओं को सुनने के लिए, और दूसरा ये कि चार्टर्स का इस्तेमाल बड़े बड़े नेताओं ने इसलिए भी किया क्योंकि उनको शाम को दिल्ली लौटना होता है, तो उसमें 12 सीटर 15 सीटर के चार्टर ज्यादा इस्तेमाल हुए। क्या ये सही है? और रिमोट एरियाज में अ, हेलीकॉप्टर की जो कनेक्टिविटी है वो काफी अच्छी है। बेसिकली हेलीकॉप्टर इज़ अ क्राउड पुलर। जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए जाते हैं। बात ये है कि जब मिनिस्टर्स को 4 या 5 कैंपेनिंग करनी होती है और उनको इंटीरियर्स तक पहुँचना होता है, तो रोड से पहुँचना 2-3 जगह ही वो कर सकते हैं, उसके ज़्यादा अगर उन्हें करना हो, तो हेलीकॉप्टर इज़ द बेस्ट अपॉर्च्युनिटी। लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जगह पहुँच सकते हैं और उनकी कैंपेनिंग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, एक सवाल ये भी था कि इस बार ज्यादा डिमांड में क्या रहा, क्योंकि आप खुद जुड़े हुए हैं इस तरह के काम से, जो ट्विन ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर्स हैं वो ज्यादा डिमांड में रहे, या जो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स हैं वो ज्यादा डिमांड में रहे, या चार्टर्स? ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते ही हैं, बिकॉज़ डीजीसीए कार के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिस्टर्स ऑलवेज़ प्रेफर ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर और उनका डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है एज़ कंपेयर्ड टू सिंगल इंजन्स। सर कुछ रिपोर्ट्स में इस तरह का दावा किया गया है कि जो ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स है वो इस वक्त 4-4 लाख रुपए पर आवर के अनुसार मिल रहे हैं। क्या ये बात ठीक है? इस पे मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। अच्छा, दूसरा सर एक आखिरी सवाल जो हम आपसे समझना चाहते हैं हुँ, हुँ। कि इस वक्त देश में जो अनशेड्यूल्ड ऑपरेशन वाली जो बात है, जो कैटेगरी है, इसको अगर आप थोड़ा समझा पाए कि क्या होता है अनशेड्यूल्ड ऑपरेशंस? So it is not unscheduled, it is non-scheduled operating permit. बेसिकली आप एक प्राइवेट ऑपरेटर होते हैं, तो आप अपना हेलीकॉप्टर प्राइवेटली अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और एक नॉन शेड्यूल ऑपरेटिंग परमिट होता है, जो आप ये लेके आप चार्टर्स कर सकते हैं। तो जितने भी ये हेलीकॉप्टर चार्टर्स हुए हैं, ये सब नॉन शेड्यूल ऑपरेटिंग परमिट मतलब एनएसओपी होल्डर्स जो होते हैं, वही कर सकते हैं। तो हमारी जो कंपनी है दैट इज़ अ एनएसओपी ऑपरेटर। So we can charter it and we can give it to the ministers for charters.